Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. BA English Part 1 Poem Tatari. Summary. This is a fantastic poem by Walter de la Mare. He considered himself the lord of Tatari, an imaginative, glorious land the poet dreams of. The land Tatari does not exist in reality. This is only the poet's imagination that he sees such a grand land and thinks himself the king of that land. He describes various type of facilities and luxuries he would enjoy as that kind of Tatari. He says that Tatari is beautiful and fertile land. It has many delights which we haven't heard of. He says that as the king of Tatari, he would have the bed made of ivory. He would have a golden throne with gold leaves on it. ये पोएम क्या है? ये बहुत दिलचस्प और शानदार पोएम है जिसको वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। वो इसको अपनी वो एक तख्लीकाती दुनिया बनाता है, इमेजिन करता है कि एक सरजमीन है जिसका नाम वो क्या रखता है? ताताड़ी। ये हकीकत में बिल्कुल भी पाई नहीं जाती, इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ उसका एक ड्रीम है। वो सोचता है कि उसका एक उसकी ज़मीन है जहाँ का वो हुक्मरान है, वहाँ का बादशाह है, वो वहाँ पे हुकूमत करना चाहता है। वहाँ पे उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हर तरह की उसको सहूलतें मुयस्सर हैं। वो अपने आप को ख्वाबों में क्या समझता है? ताताड़ी का बादशाह समझता है। वो कहता है कि मेरा जो बेड बनना हो वो हाथी दांत का बनना हो, उस पे गोल्ड लगे हो, उसके ऊपर हर तरह की गोल्ड का काम किया गया हो। He describes his fancy dreamland as the most beautiful place in the world. He says that there would be peacocks dancing in his court. Its forest will have tigers hunting the animals. Its pools will be full of great fish. He says that he would wear a grand robe adorned with golden beads. He would hold a carved sword and would go around his realm riding a chariot with 7 zebras pulling it. वो क्या सोचता है कि उसका जो दरबार है वहाँ पे पीकॉक्स अपना रक्स करे, यानी कि मोर वहाँ पे रक्स करते दिखाई दे हर जगह पे, और क्या हो उसका, वो इसके पास एक बग्गी हो जिसके वो 7 ज़ेब्रा लेके मूव करते हैं और वो वहाँ पे बैठ के कहाँ की सैर करे? ताताड़ी की सरजमीन की सैर करे। He says that there would be harp playing flute and mandolin in his court. He says that the land Tatari is very beautiful. He would get pleasure from all the fascinating things present there. The poem shows the poet's lust and desire for power and might. He wishes to become the sole and monarch king of Tatari. वो क्या करता है कि वो ख्वाबों में अपने हर चीज़ को पा लेता है। वो क्या कर रहा है? वो ताताड़ी की सरजमीन में अपने आप को बादशाह समझ रहा है। वो कहता है कि मेरा जो दरबार है वहाँ पे पीकॉक अपना रक्स दिखाएं, जो दरबान है उसके आगे पीछे फिरे, और जो उसके दरबान है उसको खाने के लिए बुलाएं तो अपने ट्रम्पेट्स को बजाते हुए। He describes his imaginary kingdom further. वो अपनी imaginary kingdom को मज़ीद बयान करते हुए बताता है। He says that there would be lions roaring in the jungles of Tatari. The beautiful and charming fish will be swimming in its pools. The poet wants to be the master of all pomp and show of Tatari. He says that her slaves would give him a sweet whistle for the meal. ये सारी वही बातें हैं कि वो क्या सोच रहा है कि उसके जो दरबान है उसको खाने के लिए बुलाएं तो ट्रम्पेट बजाते हुए बुलाएं, जो उसके पास पूल है, जो उसके कोर्ट के अंदर, जो उसके दरबार के अंदर पूल है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ इधर से उधर फिरती नज़र आए, तैरती नज़र आए। The night at Tatari would have even more charm than the day. There would be glowing, colorful lights which would illuminate his palace. The dancers would please him with their dance. वो क्या कहता है कि उसके महल में क्या हो? डांसर्स अपना डांस सिखा रहे हो।
He would be the owner of all things like fruits, rivers, valleys, forests, clouds, air, mountains and flowers of Tatari. वो क्या समझ रहा है, वो कहता है, वो क्या ख्वाहिश कर रहा है, वो कहता है कि मैं ताताड़ी का बादशाह हूँ। और वो कहाँ पे हुकूमत करना चाहता है, वो फलों पे हुकूमत करना चाहता है, वो दरख्तों पे हुकूमत करना चाहता है, वो रिवर्स पे हुकूमत करना चाहता है, वो लेक्स पे हुकूमत करना चाहता है, इवन के वो अपनी जो सरजमीन है वहाँ की हर चीज़ पे हुकूमत करना चाहता है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो लेक्स हैं, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। तो ये एक इसकी छोटी सी ख्वाहिश है जिसका कोई नुकसान नहीं है। वो अपने आप को ख्वाबों ही ख्वाबों में अपनी लैंड का बादशाह तस्वुर करता है। The birds, the lakes and trees would be in his possession. The poem is show of internal drives of the poet. The poet wants to be an extreme ruler of the land. He does not care for the reality and goes on with his own imagination. In fact, the poem is a beautiful piece of art by Walter de la Mare. क्या है कि इसकी एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशनरी दुनिया बनाई है। वो अपनी तख्लीक़ाती दुनिया में मगन है। वो अपनी हर ख्वाहिश को अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में पूरी करना चाहता है। ये उसके अंदर की ख्वाहिश है जो कि उसने बहुत खूबसूरती से अपनी पोइम के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।